اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے رہائشی علاقوں میں حملے تیز، تازہ وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 281 فلسطینی شہید اور 382 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک شہداء کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی، 54,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کے سربراہ ہرزئی حلیوی نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کو کئی مہینے لگ سکتے ہیں، ہم نے حماس کی لیڈرشپ تک پہنچنا ہے۔ پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی آج 16ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے سیاست کے میدان میں قدم مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کے ساتھ رکھا۔ 18 اکتوبر کے دہشت گرد حملے کے باوجود محترمہ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی جسا گاہ پہنچی۔ جلسہ کے اختتام پر خودکش حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر سندھ بھر میں آج عام تعطیل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی۔ دونوں ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپسی کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے کے مطابق 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 13 جنوری 2024 کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ ایک سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ مخالفین کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ الیکشن والے دن بلے کا نشان نہ ہو، لیکن ان کی اس خواہش پر پانی پھر گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا، مسلم لیگ نون پنجاب میں قومی اسمبلی کی 100 سے زائد نشستوں پر کامیاب ہوگی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خیبر پختونخوا کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کے امور پر اہم جائزہ اجلاس ہوا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت محدود وسائل کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ اندازوں سے اسموک پر قابو نہیں پا سکتے۔ کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموک کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ حکومت کے پاس اسموک بڑھنے کی وجوہات کی مستند ریسرچ ہی نہیں۔ اجلاس میں اسموک سے متعلق انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے اسٹڈی کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات پر بند کر دی گئیں۔ سیون میں انڈس ہائی وے روڈ پر 2 گاڑیوں سیون میں انڈس ہائی وے روڈ پر 2 گاڑیوں میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 5 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ سعودی عرب نے غیر ملکی عازمین حج 2024 کے لیے باضابطہ طور پر رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج اور ان کے اہل خانہ کی رجسٹریشن کے لیے درخواستیں نسک ایپ کے ذریعے وصول کرنا شروع کر دی۔
मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी 318 रन बनाकर आउट हो गए। आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों को नेशनल ड्यूटी को तरजीह देने के बजाय गैर मुल्की लीग्स खेलने में शिरकत के लिए इजाजत मांगना महंगा पड़ गया। मुजीबुर रहमान, फजलुल हक फारूकी और नबीलुल हक के खिलाफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अगले 2 बरस तक गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए एनओसी जारी न करने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक फास्ट बॉलर यासिर अरफात को कौमी क्रिकेट टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया। यासिर अरफात न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। और मारूफ अदाकारा आयजा खान ड्रामे की शूटिंग के दौरान आग लगने के वाकये में बाल बाल बच गईं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने ड्रामे की सीट से एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि शूटिंग के दौरान अदाकारा सीन रिकॉर्ड करवाने के लिए पहले से आग लगी हुई शॉल उठाकर दूसरी जानिब फेंकती हैं, ताहम इसी असना में आग के कुछ शोले जमीन पर फैल जाते हैं। आयजा खान ने हादसे में महफूज रहने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लिखा कि अदाकार बनना आसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इसराइली फौज की जानिब से गजा पर जारी बर्बरियत की, जिसने रिहायशी इलाकों हवाले की गई शोहदा की मैयतों को बगैर शनाख्त के इज्तमाई कब्र में दफन कर दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज के सरबराह हरजई हलेवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा में जारी जंग को कई महीने लग सकते हैं। हमने हमास की लीडरशिप तक पहुंचना है। गजा में हमास के खिलाफ जंग जरूरी है लेकिन आसान नहीं। और नाजरीन, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। बेनजीर भुट्टो ने सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जिद्दोजहद के साथ रखा। तरबियत का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास और शिमला मुआहदे के यादगार मौके पर शिरकत से हुआ। 30 साल सियासी करियर में बेनजीर भुट्टो सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रही। सियासी आजमाइशों का बेनजीर भुट्टो ने तदब्बुर और बहादुरी से मुकाबला किया। उत्तर मशरिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 16वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। दुख्तर मशरिक का लक़ब पाने वाली बेनजीर भुट्टो, जिनके वालिद को फांसी पर चढ़ाया गया, 2 भाई कत्ल हुए, बदतरीन आमरीयतों का सामना रहा। बेनजीर भुट्टो ने जलावतनी के दुख भी झेले लेकिन जमहूरी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटी। बेनजीर भुट्टो को आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज भी हासिल रहा। बेनजीर भुट्टो, जिन्हें सियासी मुबस्सिरीन पाकिस्तान में सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना करने वाली रहनुमा करार देते हैं। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो का शुमार जनूबी एशिया की उन सियासी शख्सियात में होता है जिनकी पज़ेराई बैनुल अक़वामी सतह पर हुई। बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की, जबकि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वो दरसगाहें हैं जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और बैनुल अक़वामी कवानीन में आला तालीम हासिल की। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोनों बेटों के बजाय बेनजीर भुट्टो को अपना सियासी जानशीं करार दिया था। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर उन पर जानलेवा हमला किया गया और यूं अवाम की ये महबूब लीडर अलमनाक अंदाज में दुनिया से रुखसत हो गई। बेनजीर भुट्टो को लाड़काना के गड़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भाइयों मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सपुर्द खाक किया। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है।
शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी को थाना आरे बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन के नजरबंदी ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। बानी पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडयाला जेल में करेगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान शाह महमूद जतोई, बाबर हुसैन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह बी बेंच में शामिल हैं। कमीशन की जानिब से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक समाअत में दोनों मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। दूसरी तरफ साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। बानी पीटीआई के वकला ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। दरखास्त में तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने की मुतफरिक दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के केस में समाअत का 3 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने तहरीर किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी 2024 को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। वोट के ख्वाहिशमंद को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए जाते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए और पीटीआई का बल्ले का निशान भी बहाल किया जाए। फैसले में मजीद कहा गया है कि आइंदा समाअत 9 जनवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश की तरदीद कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर का बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतालिक दावा झूठा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर समेत किसी को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। वाज़ेह रहे कि परवेज खट्टर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बल्ले का इंतखाबी निशान देने की पेशकश का दावा किया था। यहां आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश की तरदीद कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर का बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतालिक दावा झूठा करार दे दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। वाज़ेह रहे कि परवेज खट्टर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बल्ले का इंतखाबी निशान देने की पेशकश का दावा किया था। उधर पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि मुखालिफिन के पास एक ही रास्ता था कि इलेक्शन वाले दिन बल्ले का निशान ना हो, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश पर भी पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि अब पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जिनको चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए लंदन से लाया गया है, जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आएगी तो उनको वापस जाना होगा। मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने जवाबी वार करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी असम्बली की 100 से जायद नशिस्तों पर कामयाब होगी। इंतखाबी मुहिम के 10 दिनों में पीटीआई को पता चल जाएगा कि वो कहां खड़ी है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पीटीआई की रूपोश रहनुमा जरताज गुल के कागजात नामजदगी से मुतालिक दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने जरताज गुल के अदालत में पेश न होने पर दरखास्त मुस्तरद की। नामालूम मकाम से जारी बयान में जरताज गुल का कहना था कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए जाती हैसियत में तलब किया जा रहा है, हर फोरम पर अपील करूंगी। जरताज गुल की जानिब से आरोप के कागजात नामजदगी पर लगाए एतराजात पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया गया था।
उन्होंने डीजी खान के हल्का NA 185 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। और नाज़रीन, बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात की अदायगी का मामला निगरान वज़ीर आज़म के साथ उठा दिया है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि AGN काजी फार्मूले के तहत पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे सूबाई हुकूमत के 1500 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खुसूसी लगाव है। निगरान वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश माली मसाइल हल करने में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। अरशद हुसैन शाह ने कहा कि उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में भरपूर ताउन करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात की अदायगी का मामला निगरान वज़ीर आज़म के साथ उठा दिया है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि AGN काजी फार्मूले के तहत पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे सूबाई हुकूमत के 1500 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खुसूसी लगाव है। निगरान वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश माली मसाइल हल करने में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। अरशद हुसैन शाह ने कहा कि उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म इस सिलसिले में भरपूर ताउन करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर अहम जायजा इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल से पूरी तरह से आगाह हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। इस सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने सूबे के माली वसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत कर दी। कमेटी नेट हाइडल प्रॉफिट्स और तेल और गैस की रॉयल्टी की अदायगी के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने खैबर मेडिकल कॉलेज पिशावर और अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम तेज करने की भी हिदायत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत ने पिछले 4 महीनों में हर शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर अहम जायजा इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल से पूरी तरह से आगाह हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। इस सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने सूबे के माली वसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत कर दी। कमेटी नेट हाइडल प्रॉफिट्स और तेलो गैस की रॉयल्टी की अदायगी के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल कॉलेज पिशावर और अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम तेज करने की भी हिदायत की है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत ने पिछले 4 महीनों में हर शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी स्मोक के खिलाफ इन एक्शन है, जिनका कहना है कि अंदाजों से स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। काबीना कमेटी पर इंसदाद स्मोक के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हुकूमत के पास स्मोक बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं,
इजलास में स्मोक से मुतालिक इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला करते हुए वजीर आला पंजाब का कहना था कि सिर्फ कयास आराइयों के जरिए स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। इजलास में वजीर आला ने सूबे भर में गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म दिया। आपको बताते हैं कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंदाजों से स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हुकूमत के पास स्मोक बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं है। इसी वजह से ही इजलास में स्मोक से मुतालिक इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब का कहना था कि सिर्फ कयास आराइयों के जरिए स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। इजलास में वजीर आला ने सूबे भर से गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म दिया है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में रिंग रोड, एयरपोर्ट, कैनाल रोड, सहाफी कॉलोनी और दीगर इलाके धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे संबड़ियाल तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट सरवर तक, M3 फैसपुर से समंदरी तक और M5 शेरशाह से ऊंच शरीफ तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस का कहना है कि सर्दी की शिद्दत से धुंध का दौरानिया बढ़ गया है। इस मौसम में बेहतरीन सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। सफर करने वाले मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि गाड़ियों पर फोक लाइट्स इस्तेमाल की जाएं और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। आपको बताते चलें कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान का कहना है कि लाहौर में रिंग रोड, एयरपोर्ट, कैनाल रोड, सहाफी कॉलोनी और दीगर इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे संबड़ियाल तक बंद कर दी गई है। M2 लाहौर से कोट सरवर तक, M3 फैसपुर से समंदरी तक और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस का कहना है कि सर्दी की शिद्दत से धुंध का दौरानिया बढ़ गया है। इस मौसम में बेहतरीन सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान की जानिब से शहरियों के लिए मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करने का भी कहा गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मुताल्लिका इदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कराची को साफ सुथरा रखने के लिए 24 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर सफाई नहीं हो रही। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कराची के मसाइल पर मुनाकिदा इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनका कहना था कि सफाई सुथराई पर 24 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। MDSSWM ने बताया है कि शहर की 25% सफाई हो गई है, लेकिन वो समझते हैं कि सिर्फ 5% शहर की सफाई हुई है। उन्होंने सिविक सेंटर की हालत इज़हार पर तनकीद करते हुए कहा कि KDA अगर अपनी इमारत को संभाल नहीं सकता तो बाकी तरक्याती काम क्या करेगा। इदारा 10 रोज के अंदर इमारत ठीक करके रिपोर्ट करे। उनका कहना था कि शहर में सड़क बनती है, फिर कोई ना कोई लाइन डालने के लिए उसे खोद दिया जाता है। नई सड़क को खोदने की इजाजत कौन देता है, कुछ पता नहीं। डायरेक्टर के MC पार्क्स अपने काम से बेखबर हैं। KMC शहर की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करे। JUA पेशावर आम इंतखाबात के लिए सूबाई सीटों की तकसीम से कबल इख्तलाफात का शिकार होगी। इस राय के मुताबिक JUI के ज़िला अमीर मौलाना अहमद अली दरवेश और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसूद गिल की जानिब से पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुपों में जारी हिदायत में कहा गया है कि शहर में बाज सूबाई सीटों पर जमात के अंदर इख्तलाफात हैं। मरकजी जमात को अपीलें की गई हैं जिन पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। अपीलों पर फैसला आने के बाद पार्टी के फाइनल उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। आपको बताते चलें कि JUI पेशावर आम इंतखाबात के लिए सूबाई सीटों की तकसीम से कबल ही इख्तलाफात का शिकार हो गई है। जराये के मुताबिक JUI के ज़िला अमीर मौलाना अहमद अली दरवेश और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसूद गिल की जानिब से पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुपों में जारी हिदायत में कहा गया है कि शहर में बाज़ सूबाई सीटों पर जमात के अंदर इख्तलाफात हैं। मरकजी जमात को अपीलें की गई हैं जिन पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया।
अपीलों पर फैसला आने के बाद पार्टी के फाइनल उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। उधर सेहवन में इंडस हाईवे रोड पर दो गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार वैन और वीगो गाड़ी के दरमियान जोरदार टकराव हुआ। हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जंग की बाजी हार गए, जबकि 25 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जख्मी में खातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें मांझद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में 5 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको लम्स जामशुरो मुंतकिल किया गया है। अफसोसनाक खबर है सेवन से, जहां इंडस हाईवे रोड पर दो गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार वैन और वीगो गाड़ी के दरमियान जोरदार टकराव हुआ। हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 25 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में खातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें मांझंद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में 5 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको लम्स जामशोरो मुंतकिल किया गया है। सऊदी अरब ने गैर मुल्की आज़मीन हज 2024 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी वजारत हज उम्रा ने दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज और उनके अहल खाना की रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तें नस्क ऐप के जरिए वसूल करना शुरू कर दी हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और ओशियाना के बरे आज़मों के आज़मीन नस्क हज के जरिए दरखास्त दे सकते हैं। नस्क ऐप से आज़मीन एक ईमेल एड्रेस के साथ अपना ज़ाती अकाउंट बनाने के बाद वेबसाइट के जरिए अपने नाम दर्ज कर सकते हैं और फ्राहम करदा फहरिस्त से अपने मुल्क का नाम मुंतखब कर सकते हैं। अहम खबर है मुसलमानों के लिए कि सऊदी अरब ने गैर मुल्की आज़मीन हज 2024 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी वजारत हज उम्रा ने दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज और उनके अहल खाना की रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तें नस्क ऐप के जरिए वसूल करना शुरू कर दी हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और ओशियाना के बरे आज़मों के आज़मीन नस्क हज के जरिए दरखास्त दे सकते हैं। नस्क ऐप से आज़मीन एक ईमेल एड्रेस के साथ अपना ज़ाती अकाउंट बनाने के बाद वेबसाइट के जरिए अपने नाम दर्ज कर सकते हैं और फ्राहम करदा फहरिस्त से अपने मुल्क का नाम मुंतखब कर सकते हैं। और नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर के हल्का NA 127 से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया गया है। आम इंतखाबात 2024 के लिए लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज शहरी मोहम्मद अय्याज ने दायर किया है। शहरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज की दरखास्त रिटर्निंग अफसर को जमा करवा दी है। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है, लिहाजा ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। और अब बात करेंगे खेल की, जहां मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज इमामुल हक 10 रन बनाकर नेथन लाइन की गेंद पर कैच आउट हो गए। बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने
जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए टीम का मजमूई स्कोर 124 रन पर पहुंचाया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक 50 मुकम्मल करने के बाद जल्द ही चलते बने और 62 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर उनको ही कैच थमा दिया। बाबर आजम भी सिर्फ एक रन पर पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, जबकि कौमी टीम की चौथी विकेट शान मसूद की शक्ल में गिरी जब वो 54 रन बनाकर नेथन लाइन की गेंद पर कैच आउट हुए। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी 318 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे रोज के खेल का आगाज हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन थे। पहले रोज आखिरी विकेट स्टीव स्मिथ की गिरी जो 26 रन पर आमिर जमाल की गेंद पर कैच आउट हुए। दूसरे रोज मार्नुस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने बैटिंग शुरू की और कुछ देर बाद ही ट्रेविस हेड ने 204 के मजमूई स्कोर पर आगा सलमान को कैच दे दिया। इसके बाद मार्नुस लाबुशेन 63 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिचेल मार्श ने 4, एलेक्स कैरी ने 4, मिचेल स्टॉक ने 9, पैट कमिंस ने 13 और लिथन लाइन ने 8 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3, शाहीन आफरीदी, हसन अली और मीर हमजा ने 2-2, जबकि आगा सलमान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों को नेशनल ड्यूटी को तरजीह देने के बजाय गैर मुल्की लीग्स खेल में शिरकत के लिए इजाजत महंगा पड़ गया है। मुजीबुर रहमान, फजलुल हक फारूकी और नवीनुल हक के खिलाफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अगले 2 बरस तक गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए एनओसी जारी न करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयान के मुताबिक तीनों खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार किया और नेशनल ड्यूटी को तरजीह देने के बजाय गैर मुल्की लीग्स खेलने में शिरकत के लिए इजाजत देने की दरखास्त की थी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक फास्ट बॉलर यासिर अरफात को कौमी टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया है। पीसीबी की जानिब से जारी एलामिया में यासिर अरफात को बतौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच तकर्रुरी का ऐलान किया गया। यासिर अरफात न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। वो 29 दिसंबर से लाहौर के कैंप में बतौर कैंप कमांडेंट खिदमत अंजाम देंगे। भारत के खिलाफ डेविस कप के लिए पाकिस्तान टेनिस टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर सलीम सैफुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के खिलाफ 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले डेविस कप ग्रुप 1 टाई में पाकिस्तान की नुमाइंदगी आसाम उल हक, अकील खान, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शुएब और बरकतुल्लाह करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी काविशों के बायस पाकिस्तान ने डेविस कप की मेजबानी हासिल की। भारत को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ा। हैरानी है कि मोदी सरकार टेनिस में भी सियासत कर रही है। सलीम सैफुल्लाह ने कहा कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने हमारा मौकफ तस्लीम किया है। सियासत अपनी जगह, लेकिन खेलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा आयजा खान ड्रामे की शूटिंग के दौरान आग लगने के वाकये में बाल बाल बच गई। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने ड्रामे के सेट से एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि शूटिंग के दौरान अदाकारा सीन रिकॉर्ड करवाने के लिए पहले से आग लगी हुई शॉल उठाकर दूसरी जानिब फेंकती हैं, तब इसी असना में आग के कुछ शोले जमीन पर फैल जाते हैं। आयजा खान जमीन पर फैले हुए शोलों से इल्म पीछे की जानिब हटती हैं तो उनका पांव शोलों पर पड़ जाता है। ताहम एक खातून अदाकारा का नाम पुकार उन्हें इंतबाह देती है, जिस पर आयजा मोहतात हो जाती हैं और किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच जाती हैं। वीडियो के कैप्शन में आयजा ने हादसे में महफूज रहने और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लिखा कि अदाकार बनना आसान नहीं होता। आपको बताते चलें कि मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा आयजा खान ड्रामे की शूटिंग के दौरान आग लगने के वाकये में बाल बाल बच गई हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने ड्रामे के सेट से एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि शूटिंग के दौरान अदाकारा सीन रिकॉर्ड करवाने के लिए पहले से आग लगी हुई शॉल उठाकर दूसरी जानिब फेंकती हैं, ताहम इसी असना में आग के कुछ शोले जमीन पर फैल जाते हैं। आयजा खान जमीन पर फैले हुए शोलों से लाइल्म पीछे की जानिब हटती हैं तो उनका पांव शोलों पर पड़ जाता है। ताहम एक खातून अदाकारा का नाम पुकार कर उन्हें इंतबा देती हैं, जिस पर आयजा मोहतात हो जाती हैं और किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच जाती हैं। वीडियो के कैप्शन में आयजा ने हादसे में महफूज रहने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लिखा कि अदाकार बनना आसान नहीं होता।
بتاتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں پاکستان نے بڑا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ کینٹ پبلک اسکول اینڈ کالج ملتان کی پرنسپل نے بین الاقوامی سطح پر تاریخ رقم کر دی ہے۔ بینکاک میں بیسٹ ایشین پرنسپل کے مقابلے میں کینٹ پبلک اسکول اینڈ کالج ملتان کے پرنسپل بینش سعید نے بہترین ایشین پرنسپل کا ایوارڈ جیت لیا۔ تھائی لینڈ کی دارالحکومت بینکاک میں ایشین ایجوکیشن کنکلیو کا انعقاد ہوا۔ ایشین ایجوکیشن کنکلیو کے زیر اہتمام بیسٹ ایشین پرنسپل کی کیٹیگری میں ایشیا کے 15 ممالک سے 2085 مرد و خواتین پرنسپلز نے مقابلے میں شرکت کی۔ ان مقابلوں کے دوسرے مرحلے میں 275 شارٹ لسٹڈ امیدواروں میں سے کینٹ پبلک اسکول و کالج ملتان کی خاتون پرنسپل بینش سعید کو فتح حاصل ہوئی۔ پرنسپل بینش سعید کو آن لائن ٹیچنگ، ماسٹر ٹریننگ، کوچنگ، تربیتی کورسز اور ایڈمنسٹریٹو اصلاحات میں ممتاز حیثیت کی بنیاد پر فاتح قرار دیا گیا۔ بینش سعید نے ٹیچر سے کوآرڈینیٹر، ماسٹر ٹرینر اور پرنسپل سے ایشین بیسٹ پرنسپل کا سفر نہایت جانفشانی اور بہترین اصلاحاتی سوچ و فکر سے طے کیا۔ پرنسپل بینش سعید پچھلے 22 سالوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ دنیا کے نامور اسکالرز اور محققین پر مشتمل ایشین ایجوکیشن کنکلیو کی جانب سے ایوارڈ کی فراہمی دراصل عالمی سطح پر پاکستان کے تعلیمی نظام پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پرنسپل بینش سعید نے اپنا اعزاز وطن کے شہداء، غازیوں اور دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں تعلیم فراہم کرنے والے اساتذہ کے نام کر دیا۔ بینش سعید نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر کے تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کی معاشی حالت کی بہتری اور غیر قانونی طریقوں سے کی جانے والی تجارت کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر مربوط حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ستمبر 2023 سے حکومتی احکامات کے تحت ملک بھر میں اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ 17 تا 26 دسمبر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں جاری انسداد اسمگلنگ آپریشنز میں برآمد کیے جانے والی اسمگل شدہ اشیاء میں ایرانی تیل، کھاد، سگریٹ، کپڑا اور چینی شامل ہیں۔ انسداد اسمگلنگ آپریشنز میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں کھاد، آٹا اور چینی برآمد کر لی گئی۔ اس حوالے سے ملک بھر سے کل 5.90 میٹرک ٹن چینی، 124.29 میٹرک ٹن کھاد، 14,928 سگریٹ کے سٹاکس، 479 کپڑے کے تھان اور 0.06 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ ملتان سے 29.48 میٹرک ٹن اور کراچی سے 94.80 میٹرک ٹن اسمگل شدہ کھاد برآمد کی گئی۔ اسمگل شدہ چینی میں متعلقہ حکومتی اداروں نے پشاور سے 0.68 میٹرک ٹن اور کوئٹہ سے 5.21 میٹرک ٹن چینی برآمد کی۔ اسمگل شدہ کپڑے میں کراچی سے 147 جبکہ کوئٹہ سے 332 تھان برآمد کر لیے گئے۔ اسمگل شدہ سگریٹ میں ملتان سے 560، کراچی سے 9,540 اور کوئٹہ سے 4,828 سٹاکس ضبط کیے گئے۔ 1 ستمبر سے اب تک ملک بھر سے اسمگلنگ کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں 9,225.79 میٹرک ٹن چینی، 202 میٹرک ٹن آٹا، 2,660.87 میٹرک ٹن کھاد، سگریٹ کے 18,07,395 سٹاکس، کپڑے کے 15,414 تھان اور 2.16 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ 1 ستمبر سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 158 مؤثر آپریشنز میں 17,028.61 میٹرک ٹن کھاد، 2,401.2 میٹرک ٹن آٹا اور 7,273.10 میٹرک ٹن چینی برآمد کی جا چکی ہے۔ نگراں حکومت، عسکری قیادت اور متعلقہ حکومتی ادارے ملک بھر سے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی سے ناسور سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ 26 دسمبر 2023 کو جانے والے 1,075 افغان شہریوں میں 341 مرد، 221 خواتین اور 513 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ 26 دسمبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,49,745 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 85 گاڑیوں میں 105 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔
कुडिया खास में 8 साल मासूम बच्चे से ज्यादती की कोशिश करने वाले दरिंदा सिर्फ मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ तमाम तर शहादतें और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एसएचओ थाना कुडिया खास आबिद महमूद चीना ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चे की फौरी दाद रसी करते हुए फिल फौर मुकदमा दर्ज करके चंद घंटे बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस संगीन और हसास मुकदमा की तफ्तीश माहिर तफ्तीशी अफसरान के जरिए अमल में लाई जा रही है। तजुर्बाकार टीम ने सख्त मेहनत करते हुए मुलजिम को अदालत से कड़ी सजा दिलवाने के लिए तमाम शहादतें इकट्ठी कर ली हैं। इंशाअल्लाह तफ्तीश के अमल में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ताकि मुआशरा के ऐसे नासूर अनासर के लिए इबरत का अनासर पैदा हो और हर शहरी का जान माल और इज्जत महफूज रहे। मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। रावलपिंडी में 10,420 लीटर दूध की चेकिंग, जबकि 500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद मोटरवे टूल प्लाजा पर नाके लगाकर 34,000 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। जालसाजी पर 3 सप्लायर्स को 90,000 के जुर्माने किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि जहलम में कवायद जवाबत के खिलाफ वर्जियों पर 5 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सियालकोट से अहम खबर शामिल करते हैं। तहसील डस्का मोतरा स्टॉप के करीब धुंध के बायस मुर्गियों वाला मजदा धुंध के बायस सामने जाती हुई बस और कार से टकरा गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। मजदे का ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त पहुंचकर ड्राइवर को बाहिफाजत निकाल कर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की और हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 23 साल अक्सा, 33 साल फैसल और 50 साल अब्दुल मजीद शामिल हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।